Good morning, student. Myself Gopal Kumar of Iconpay Public School. Today I have come with a new poem. Its name is Daffodil of Class 6. This is chapter 2. So, first of all, we will go through the word meaning of this chapter, Daffodil poem. See, here are the word meanings of this chapter. Wandered. Wandered means patakna, lonely, akela, float, bahna, whales, ghati, all at once, achanak, host, झुंड, golden, सुनहरा, beneath के नीचे, fluttering, लहराना, breeze, मंद हवा, मिल्की वे, आकाश, गंगा, stretch, फैलाना, never ending, कभी ना खत्म होना, बे, झील या खारी, glance, झलक, margin, किनारा, sprightly, जिंदा दिल, टॉस, उछालना या उछलना या हिलना, आउटडीड, बेहतर काम किया या करना, ग्ली, आनंद, गे, प्रसन्न, जोकन, जिंदा दिल, काउच, सोफा, पेंसिव, उदासीन, सॉलिट्यूड, एकांत. So these are the word meaning that you have noted it and I have described it. Now we will go through the facts about poem and the writer. So first of all, see daffodils. Daffodils is the second name of this poem. Previous it was I wandered lonely as a cloud. This was the first name of this poem and it was revised as daffodil. God gives a negative meaning and daffodil gives a positive meaning. So this name was given in 1815 and this was written around 1805 to 1807. When the writer visited with her sister Dorothy, her sister name was Dorothy. In 1882, he visited the place and he was very much amazed and excited about the daffodil poem. The daffodil is a yellow flower. Now we will know about the few facts about William Wordsworth. As you know, William Wordsworth was a romantic poet and nature-loving poet. He was born in 7th April 1770 at England. He died in 23 April 1850. So far his father is concerned, his father's name was John Wordsworth. His mother was Annie Cookson. Sister Dorothy, and her wife was Mary Hodgkinson.
So these are the facts about the writer. You can see here, he was a romantic poet, nature-loving poet. As this is a poem related to daffodils, this is also the nature. He was born on 7th April 1770. He died in 23rd April 1850. His father was John Wordsworth. Mother name was Annie Cookson. Sister Dorothy. Wife Mary Hodgkinson. So these are the facts about the poem and the writer. Now we will go through the poem. So this poem is in 4 stanza, but when it was first made by the writer, it was made into 3 stanza. Now there are 4 stanza. I will first of all go through the first 2 stanza. See, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So यहाँ जो राइटर जो आपके हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ, करेक्ट, जब ये घूम रहे थे और भटक रहे थे, कैसे भटक रहे थे? अकेले। जिस तरह से एक बादल जो है पहाड़ के ऊपर से, घाटी के ऊपर से होते हुए वो बिना कोई जाने कि कहाँ जाना है नहीं है, कहाँ जाना है उसका कोई पता नहीं है, विदाउट नोइंग द डायरेक्शन ही वॉज मूविंग, वो भटक रहे थे। उसी दौरान क्या होता है? When all at once I saw a crowd, उनको अचानक जो है डेफोडिल्स का झुंड नज़र आता है, झुंड। All at once I saw a crowd, एक झुंड नज़र आता है। क्या चीज़ का झुंड था वो? A host of golden daffodils, सुनहरा डेफोडिल्स का झुंड उनको नज़र आता है। झुंड कहाँ पे था वो? Beside the lake, beneath the trees, झील के बगल में और पेड़ के नीचे, झील के बगल में और पेड़ के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और मंद मंद हवा बह रही थी, उसमें जो है वो फूल जो है लहला रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे। द फ्लावर्स वर डांसिंग। अगेन द सेकेंड स्टेंजा, continuous as the stars that shine and as twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line. They stretched never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. तो राइटर क्या बोल रहे हैं कि जब उनके नज़र पड़ा, जिस तरह से तारे, हम लोग रात में जब तारा देखते हैं तो कंटिन्यूस लगातार जो दूर दूर तक हम लोग कुछ नहीं दिखाई पड़ता, बट वाज नथिंग बट ओनली स्टार, सिर्फ तारे ही तारे दिखाई पड़ते हैं जो टिमटिमाते थे। उसी तरह से चारों जब उन्होंने चारों तरफ जब अपना आँख को जब चारों तरफ घुमाया, देखा चारों तरफ क्या थे? सिर्फ फूल ही फूल थे। किसके फूल थे? डेफोडिल्स के फूल थे। जिस तरह से आकाश गंगा में तारे टिमटिमाते रहते, उस तरह से चारों तरफ उन्हें डेफोडिल्स ही डेफोडिल्स दिखाई दे रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, मतलब पूरा दूर तक वो जो है फैला हुआ था, उसका कोई अंत नज़र ही नहीं आ रहा था। नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन दिखाई नजर आ रही थी। चारों तरफ फूल ही फूल थे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, कहाँ पे थे? झील के किनारे में। 10,000 सॉ एट अ ग्लांस, एक बार नज़र पड़े तो लगभग वो 10,000 जो है दिखाई पड़ रहे थे, इतने थे। टॉसिंग द हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस, और कैसे कर रहे थे वो? क्या कर रहे थे वो उछल रहे थे, हिल रहे थे, झूम रहे थे, डांस कर रहे थे खुशी में, उल्लास में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट स्टेंजा। वी विल वी विल कंटिन्यू द थर्ड स्टेंजा। Now, in the third stanza,
द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली। यहाँ जो राइटर जो है वो ये कह रहे हैं कि जो है जो डैफोडिल्स है वो लहलहा रहे हैं, हवा में झूम रहे हैं, और समुद्र की लहरें जो है वो भी झूम रहे हैं, लेकिन डैफोडिल जो है उसको आउटडिड करता है। आउटडिड मीन्स उससे बेहतर डांस करती है कि नहीं। ए पोएट कुड नॉट बी गे इन सच अ जोकन कंपनी। अगर ऐसा कंपनी मिले, ऐसा साथी मिले अगर, तो हमेशा लोग खुशी रहेगा। तो पोएट भी अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट। तो वो उस फूल को निहार रहे हैं, देख रहे, टकटकी की निगाह से देख रहे हैं और सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमको कितना अच्छा, हमको आज अनमोल जो है शांति मिला है। ऐसा शांति जो हमेशा उसे याद रहेगा, जो कभी भूलेंगे नहीं। फिर हम लोग आते हैं फोर्थ स्टेंजा, विच इज द लास्ट स्टेंजा। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कॉच आई लाई इन वैकेंट और इन प्लेजर मूड, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। यहाँ राइटर क्या बोल रहे हैं, जब कभी वो सोफे बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं या उदासीन मूड में रहते हैं, तो उसकी जो यादें हैं उनको जो है याद आती है, और उसकी यादें जो है उनको जो खुश कर देता है। जिस तरह से हम कहीं से काम करके जाते हैं, थके हारे रहते हैं, ये क्या है कि अपने घर पे जब पहुंचते हैं तो अपने बच्चों को जब देखते हैं तो मन में एक खुशी आ जाती है। उसी तरह से राइटर को भी उसके बारे में जो सोचते हैं, उसका चेहरा जब सामने आता है, उसके मन में खुशी आ जाती है, उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। मेरा हृदय जो है आनंद से भर जाता है और एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल के साथ मैं भी झूमने लगता हूँ, नाचने लगता हूँ। ये इस तरह से ये डैफोडिल्स पोएम है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पोएम। थैंक यू सो मच। दैट्स इट।